जो आंसरिंग पैसेज आपकी सीयूटी एग्जाम में दिया जाता है उसको कैसे क्विकली हमें पढ़ना है और न केवल पढ़ना है बल्कि हमें याद भी रखना है उसको। क्या है, अब हमें ये वो पैसेज इंटरप्रेट भी ध्यान से करना है, हमें उसे समझना है। कार्मिक। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कैलाश, योर इंग्लिश गाइड फॉर योर सीयूटी एग्जाम। तो आज जैसे मैंने पहले आपको एक इंट्रो वीडियो दी थी, अगर आपने वो देखी है तो उसमें आप समझ जाएंगे कि हम सीयूटी का सिलेबस किस तरह से करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देख के आइएगा और फिर आप इस वीडियो को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके लिए हम ये करने वाले हैं, इस कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो अनसीन पैसेज आपकी सीयूटी एग्जाम में दिया जाता है उसको कैसे क्विकली हमें पढ़ना है और कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, जब भी हम कोई अनसीन पैसेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हमें बहुत ध्यान से फोकस होके और जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, उन सबको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और ना केवल पढ़ना है बल्कि हमें याद भी रखना है उसको। तो ये वो पैसेज है जिसको आज हम करने वाले हैं। इसमें हम एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम शुरू करते हैं और पैसेज रीड कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि किस तरह से इसे करना है। पहले हमें पैसेज ही पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और हम पहले एक स्लो पेस के साथ इसकी रीडिंग करेंगे और सेकेंड रीडिंग में हम इसको फास्ट पेस के साथ रीडिंग करेंगे। ओके, तो मैं आपको एक ही रीडिंग करके बता रहा हूं कि स्पेस में आपको दो करना है, दो रीडिंग करना है ताकि आपको पैसेज में आए हुए कंटेंट अच्छी तरह से याद रहें। जिसे हम पैसेज अभी पढ़ने वाले हैं, फ्री विल इज the ability to decide and act free from any influence of past events or environment. It implies complete freedom to make any choice absolutely. We clearly don't have free will. Our decision and action are never divorced from our past. We have conditioned mind. Our memories, past impressions, and experiences bias and shape our thoughts and actions in the present. In our karmic imprint, not just what we are born with, but also what we accumulate while living. We can consider it as the result of our genetic code, upbringing, and environment. It's our backstory. The only way to experience free will is to get rid of all such conditioning, to neutralize our karmic imprint, to be independent of our psychological coding. That's possible only if we can purify our mind by letting go of all our ego, attachments, and fixed beliefs. Then we can reside in the truth of our being. The above is an exacting definition of free will. What we commonly mean by free will is that we have choice in most situations, like who you choose to marry, but what profession you pursue, and or how you can react to someone's aggression sounds reasonable. But here is the catch. Our ability to make what choice to is significantly restricted, dictated by our predispositions. This applies even to our ability to bring about change within ourselves. Despite our strong resolve to be calmer, kinder, or less anxious, our ability to manifest that change depends partly on our emotional and mental wiring. That's why
Some people succeed in such efforts more than the others. If you wish to expand the scope of your agency, explore ways to engage in sustained inner work, deepens your self awareness. Examine and reform your conditioned beliefs. But then I wonder if your inclination to embark on that journey to depend on your current karmic coding. So this was the passage. So this was the first reading, and in your second reading you need to read a bit fast. Free will is the ability to decide, act free from influence of past events or environment. It implies complete freedom to make any choice. Absolutely, we clearly don't have free will. Our decisions and actions are never divorced from our past. In that way, second reading must be done. And in while reading, जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो इसको पढ़ते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या क्या वर्ड के अक्रॉस हम आ रहे हैं और उनको बहुत ध्यान से याद रखना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां बोर्ड पर लिखा है, ऑथर आर्ग्यूज दैट ह्यूमन डोंट हैव फ्री विल बिकॉज। अब बिकॉज के आगे हमने पैसेज में पढ़ा हुआ है, जब इस पैसेज में हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उसको अब हम रिकॉल करते हैं, या फिर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है एक बार फिर से हम वहां जाते हैं जहां पर ये इसकी बात कर रहा है। ऑथर आर्ग्यूज दैट ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल बिकॉज। आप इसको एक बार फिर से जाके इसको रीडिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, आपको ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शंस में जैसे दे रखे हैं, our decisions are shaped by past events and environment influences. We are born with predetermined choices that we are forced to make. We are always dictated by our mind to make irrational choices. Human beings are born slaves of social constructs and expectations. अब मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ये पैसेज को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है वो जरूर इनमें कंफ्यूज होंगे, इसमें कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि सारे हमें जब इसको पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस हमें लग रहा है कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं पैसेज में और शायद कोई भी एक आंसर हो सकता है। बट द थिंग इज दैट अगर आपने बहुत ध्यान से पैसेज को पढ़ा है और समझा है तो आप देखें क्या कहता है, ऑथर आर्ग्यूज दैट ह्यूमन डोंट हैव फ्री विल बिकॉज, क्यों नहीं है उनके पास फ्री विल, आवर डिसीजंस आर शेप्ड बाय पास्ट इवेंट्स एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। क्लियर यहां पर आपको इसका आंसर दिया हुआ है। क्या? We have conditioned mind, our memories, past impression and experiences bias and shape our thought and actions in present. So A will be the right option of your answer. बिल्कुल इसी तरह से अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, और सेकंड क्वेश्चन ये है, कहता है कि कार्मिक इम्प्रिंट्स। अब बताओ, ये आपके लिए आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये कार्मिक इम्प्रिंट्स जो हम बात कर रहे हैं ये किस पैराग्राफ में, पैसेज के किस पैराग्राफ में आया है। ओके, अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे और मेमोराइज करोगे, इसको रिकॉल करोगे, याद रखोगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा कि ये पैसेज, ये पैरा पैसेज की सेकंड पैरा की सेकंड लाइन में ही आया हुआ है। तो उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है। अब हमें क्वेश्चन को इंटरप्रेट भी ध्यान से करना है, हमें इसे समझना है। कार्मिक इम्प्रिंट्स रेफर्ड टू द पैसेज इंप्लाइज, तो क्या द एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन वन सेल्फ, आर जेनरिक कोड अपब्रिंगिंग एंड एनवायरमेंट, द ट्रूथ ऑफ आर बीइंग, आर इंडिविजुअलिटी, द रॉन्ग डूइंग्स एंड वाइसेस ऑफ आर पास्ट। बता सकते हैं? देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, आर मेमोरीज, past impressions and experiences bias and shape our thoughts and action in the present. It is our karmic imprint, not just what we are born with, but also what we accumulate while living. We can consider it as the result of our genetic code, upbringing and environment. तो आपको आंसर मिल गया? मिला नहीं मिला? देखो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी, पार्ट बी। क्या लिखा है,
our genetic code, upbringing and environment given in the passage or not? So it is very very important for you people to understand, read it thoroughly, then decide, interpret the question accordingly and write the answer. Okay, last question I am taking. For other three questions, there are other three questions, I am leaving those three questions for you as homework. तो ये करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आपके आंसर्स क्या क्या है. Okay, now let's move on to question number 3. Free will can be experienced if. See, in all the questions, fill in the blanks have to be, they have been asked. You have to fill the correct option from the given one. Okay. Now, what is that? It is, the question is, free will can be experienced if. What should be the answer? The options are: we embrace our past experiences and conditioning. We make choices without considering the consequences. We let go of our ego, attachments, and fixed belief. We accumulate more and more karmic imprints. You see, these four options, they look like as if कि वो इसमें आया हुआ है, पैसेज में आया हुआ है, चारों ही ऑप्शन आए हुए हैं. तो यहां आपको विटफुली इंटरप्रिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. देखिए क्या है आंसर. इसका आंसर है, पहला है वी एम्ब्रास, नो. वी मेक चॉइसेस, नो. वी लेट गो ऑफ आर ईगो, यस ऑफ कोर्स इट इज गिवन हियर. देखो आप अपना पैसेज पढ़ोगे तो इस पैसेज में थर्ड पैराग्राफ में ये दिया हुआ है. हाँ, तो दिया हुआ है वी लेट गो ऑफ आर ईगो, अटैचमेंट्स एंड फिक्स्ड बिलीव्स. तो अब बाकी के जो 3 क्वेश्चंस है ना, ये तीनों क्वेश्चंस थर्ड क्वेश्चन में दिया है द ऑथर प्रूव्स दैट द आइडिया ऑफ फ्री विल इज मिथ बाय सजेस्टिंग दैट. इसके आगे 4 ऑप्शन है, चारों आप पढ़ेंगे, आंसर देंगे. कमेंट बॉक्स में ये आंसर्स आप मुझे लिख के भेजेंगे. ठीक है. तो यहां इस तरह से हम अपना अनसीन पैसेज जो दिया है सीयूईटी के एग्जाम के अंदर, उसको हम सॉल्व करेंगे. और वीडियो को बहुत ध्यान से देखें. पैसेज जो दिया है, इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें. अगर कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि इसको सॉल्व कैसे करें. थैंक यू.